Class 11 will focus on the energy level diagram, and you will see that there are different relative energies of various orbitals that we can show with the help of a very simple diagram. And this particular diagram is known as your energy level diagrams. Okay, I have made one diagram, and this diagram, you can see this particular diagram, all the S I have written here, few P's I have written, few D's are written, F I have written. So this is a simple diagram for the hydrogen atom. You know that hydrogen is a particular atom which holds only one electron in its outermost orbit. Fine. So if you see this diagram, in case of hydrogen केस तो हाइड्रोजन वैसे तो वन इलेक्ट्रॉन है, बट इफ़ यू सी दिस दैट ओवर हियर दिस डायग्राम शोज दैट दिस इज वन एस, this 2s and 2p, they are coming in the same range, so they possess equal energy. Over here just see this part, they are also coming in the same energy, है ना. सो इट इज़ अ केस ऑफ हाइड्रोजन. भाई हाइड्रोजन में कोई इशू नहीं है, यही भर जाता है. यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करने का कोई, देर इज़ नो point of filling the electrons in these things because you know the atomic number of hydrogen. Now let's focus on the case when you are focusing on the multi electron atoms, means electron which possess more electrons, not one but more than that, 10 हो जाए, 20 हो जाए, anything more than that. So in that case you will show a very different way of representing the energy level diagram. Let's make that also. Now focus on this particular diagram. This is a diagram where the we have multi electron atom, and in this you will see the energies are different, entirely different from each other. Why this is happening? Because the value of L is also different, है ना. N की value भी different हो जाएगी, because of that the value of N is also different. Just see 1s, it is here, then 2s is more than that, 2p is more than that, 3s is more than that, then 4p, then over here you can see that 4s is coming down, then 3d, then 4p, this way. Fine, this is the way how you see the electron, this thing, your energy levels, because you see why this is happening, why these type of range you are getting across. You have to keep in mind that you have different orbitals have different energies. These particular orbitals have different values of L, they have different values of N is also different, है ना. देखो यहाँ पे केस क्या है, N1 principal quantum number 1 है, over here you see the principal quantum number is 2, over here principal quantum number is 3. So that's why you are getting a very different way of energy levels diagram when you are taking the particular atom which is having more electrons, ना, more than one electrons. ठीक है. Now let's also see few things in that. दिस पर्टिकुलर डायग्राम ना, दिस थिंग देखो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट दिस वे इज़ वेरी गुड टू टेल यू दैट हाउ यू कैन फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट. तो एक बहुत यूजफुल है फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स. 1s पहले भरेंगे, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, है ना. देन यू गो फॉर 4s, देन यू गो फॉर 3d, है ना. In the previous also you have seen the same manner, but this range you will see there are certain when you go for the electronic configuration, then you will see there are different ways of writing your way of writing the electronic configuration. Okay, so this is one of the rule. Later on I'll explain you with the help of certain examples, then you can see the different way how you can write down the electronic configuration. Now let's focus on the other rule also, that is N plus L rule. Now if you focus on N plus L rule, this rule automatically you can say that it is being governed or based on two numbers. One is your principal quantum number and other is your azimuthal so this rule is based on these two quantum numbers, and you can easily calculate this thing. It's the relative energy of the subshells in the multi electron electrons can be obtained by this rule. So you can easily calculate the relative energies of the subshell. Now let's focus on few of the example. Let's focus on the first part, the subshells with the lower values of N plus L's. Now you are seeing that all these rules having the same concept or same point, that they want that the orbital should be filled with the help of the electrons, and the lower value should be the lower orbital whose energy is low should be filled first. So this is also a way of explaining that thing. So over here you have to see that the subcell with a lower value of N plus L will have low energy and it will fill first.
So let's come across, let's see, we have two, we are taking two particular subshells. एक 4s ले लेते हैं and we can use the 4d also. ठीक है, अब 4s के केस पे अगर आप फोकस करें then what will be the case, आप अगर n प्लस एल का रूल देखें, ठीक है, n इसका क्या होगा, n will be equal to, if you remember, that is whatever the principal quantum number is written in front, that is the value of n. L क्या होगा, S के केस पे I have already mentioned you, if you remember that series, that S is always having the value for L is 0, P के केस में 1 होती है, D is 2 and F is 3. This thing you have to always keep because this particular values are helpful in other one or the other way. So L is 0. So what you have to add? You have to add up these things. 4 plus 0, what you are getting 4. So N plus L's value is how much? In this case is 4. Let's focus on this. 4D को देख लेते हैं क्या होता है. So N is 4 and if you remember the value of D for L is how much? That is 2. So N plus L, 4 plus 2 कितना हुआ 6. So this value is low, this value is big. तो क्या होगा, first 4s will be filled, then 4d will be filled. You can take some other example also. 4s लिया आपने और 3d ले लिया, ठीक है. 3d में आपने यही n plus l रूल फॉलो अप करा, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू d के लिए अभी आपने देखा है हाउ मच इट इज़ कमिंग 2. So what you will see, then you will get the 5 value. So what happened, the 4s will be filled first, then your 3d will be filled later on. So this way you can have आप किसी को भी easily compare कर सकते हैं, कोई भी टीचर आपको दे दे तो आपको बस आपको ये बात याद रखनी है क्वांटम नंबर की कंडीशन में, ठीक है. एल की वैल्यू क्या थी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू. सो दिस वे यू कैन, है ना, यू कैन से, यू कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, इट इज़ ऑल योर चॉइस. आई हैव मेंशन 3 एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक सम अदर वन. जैसे 5s लिया आपने तो n प्लस एल, तो यही है 5 प्लस कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 0, दैट इज़ 5. तो ये बाद में भरा जाएगा ना, मतलब पहले ये भरेंगे आप, फिर आप क्या भरेंगे, यू विल सी दिस थिंग, है ना. तो दिस वे यू कैन हैव अ पॉइंट दैट हाउ यू कैन हैव योर फिल योर इलेक्ट्रॉन्स. Now one question must be arise to you all that children, over here you are getting also 5, over here you are getting 5, है ना, ये ना. तो you should say मैम these two values should come in the same place, मतलब 3D पहले आए और 5D 5s ये दोनों पास पास आए, जबकि ऐसा नहीं होता भाई. इसका भी एक रूल है कि भाई पहले 2s वाले भरेंगे 1 वाले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर 2s वाले भरेंगे, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, दिस वे. तो ये काफ़ी दूर होता है. डायग्राम आपको आई हैव शोन यू पीछे, है ना, मेंशन यू द एनर्जी लेवल डायग्राम, इन दैट यू हैव सीन दैट 4s इज़ वेरी फार फ्रॉम योर 3D. आई एम अगेन शोइंग यू, जस्ट सी द डायग्राम. 3D कहाँ है, 5s कहाँ है ना. सो आई हैव रिटन द सेम पॉइंट. अभी जो मैंने एग्जाम्पल I have mentioned you ना, where you are getting the this thing 3D value was also 5 and 5s value was also 5 ना, n plus l rule के हिसाब से. So you are getting this thing as 5 and over here you are getting this thing as 5. So we were still filling this electron first and this is later. Why? You have to also see about the values of n plus l. If both the values of n plus l is same, then you have to focus on the value, lower value of n. मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है. तो इन दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, देखो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 5 है. तो आपको 3 इसको पहले आप भरोगे और इसको बाद में भरोगे. मेरी बात समझ में आ रही है. और बाकी कुछ नहीं है तो यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑल्सो. तो दीज 2 पॉइंट्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन n plus l rule. Now children, let's focus on the electronic configuration part for elements. I have given you that rules above principle. So still let's write down the same thing. School, public school, DPS, foreign DPS, foreign DPS लगा लो. ऐसे तो 7s तक ही है हमारा, तो लेट इट बी. आई हैव ऑलवेज मेंशन यू कि ये हमेशा याद रखना. S इज़ 1 तो P की वैल्यू 2 से स्टार्ट होएगी, D जो एक कम हो जाएगा 3 होगा, F क्या होगा 4 होगा. दिस इज़ द शॉर्टकट वी वर फोकसिंग, है ना. सो लेट्स फोकस 1 2 3 4 5 6 7. नाउ P 2P 3 4 5
6 and 7. Then D starts with 3. 3D, 4D, 5D and 6D. Then F start for 4 and 5. So these values, now this way we have to fill. Now there are certain rules which you have to follow. Then you will say, ma'am, this rule is not been following up. Let's focus on the smallest number. Initially let's go for the very first one. Hydrogen is there. If you go your old way of writing electronic configuration, you will simply, atomic number of hydrogen is 1, you will write down 1. But now this is not the way to write. Now you have to focus on it, this thing. And one more thing you have to understand, that S can hold maximum 2 electrons in terms of electrons. ये तो shortcut है. P can hold 6, D can hold 10 and F can hold 14. Means 0 to 2, 0 to 6, 0 to 10 and 0 to 14, right? So let's focus on it. So what you write down, 1s. पहला कौन आ रहा है, 1s. You will write down 1s. How many electrons it is having? 1 atomic number, तो you write down 1 over here. This is the way. Next member is helium. So its atomic number is 2. So 1s, पहले 1s ही भरेंगे. Maximum capacity is 2. So you will put 2 over here. Now in boxes, how you will write down? You will write down this way for 1s. 2s, first electron will come here, second electron will come here. क्योंकि you have to see the Hund's rules also and Pauli's principle also ना. Everything you have to focus. Let's focus on the bigger number now. So bigger number, let's focus to boron. Atomic number is 5. So we know the table. So first come for 1s2, then comes your 2s2, then comes your 2p, है ना. जो पीछे हमारी टेबल है उसमें 2p पहले बाद में आएगा. So इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी कैपेसिटी 2 है. 5 एटॉमिक नंबर है. 2 + 2 इज हाउ मच, 4. 5 - 4 is 1. तो what you will put it over here, 1. Now let's see how to make a diagram. You make a boxes. एस के में तो ईजी होता है ना. 2p में इफ़ यू रिमेंबर ना, वी हैव दिस थिंग 2px, 2py, 2pz. तो 1, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज़. अब यहाँ पे हुन्स रूल्स पे आप फॉलो करेंगे, लेकिन पहले आप ध्यान रखिए, पहले आप 1s को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऐसे ही करा था हमने. फिर हमारा 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. फिर यहाँ क्या है हमारा, दिस विल, क्योंकि px में कितने 1 है, 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स वे फिलिंग ईयर. 2s में 1s में 2 थे, 2s में 2 थे और 2p में 1 थे. तो दिस वे है ना. अगर चलो हमने पीछे बेरिलियम देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा. सो दिस वे 1s2 एंड 2s2 ऐसे ही भरते थे ना. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें भरेंगे एंड ओवर हियर यू फिल 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p, just see how many, 4 is already there, तो 4. Now this thing you can elaborate also. अगर नहीं समझ पा रहे हो तो डायग्राम बना के कर लेना. चलो इसको छोड़ देते हैं. लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम. फर्स्ट बॉक्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके. 2s will also having 2 electrons. Now come for the p part. ये px है, py है, pz है. So 1 electron first will go here. 4 है ना, 1 2 3. पहले हुन्स रूल के हिसाब से we'll put 1 electron. Then the 4th electron will come here. It will go for pairing. ये ऐसे भी लिखा जा सकता है बहुत सी बुक्स में, px2, py1 and 2pz1. ये शो करेगा कि px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, py में 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, pz में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो दिस वे ऑल्सो इन सम बुक्स दे आर रिटन. और ये लिख देंगे तो भी यू विल गेट मार्क्स. दिस वे ऑल्सो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है. आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही लिखिएगा. नाउ लेट्स कम टू अ बिगर नंबर, से Na11. ठीक है. सो 1s2, 2s2, नाउ 2p6 हो जाएगा ये. ठीक है. और क्या हो जाएगा, 3s1. It's clear to you? This way you will write down. Now this way, this was the thing which we were doing, and now let's focus on this way. Al हमने लिया 13 atomic number. So first what will fill? You fill 1s2, then you will fill 2s2, then you come to 2p6, then 3s2. Count करो कितना हो गया, 10 11 12. नेक्स्ट मेंबर इज़ व्हाट आफ्टर 3s2. ये चलेंगे ऐसे ही, 1s2, 2s2, 2p, देन 3s, 3p, 4s. तो अब कौन आ रहा है आपका, 3p इज़ कमिंग. हाउ मच इज़ देयर, 1.
So this way you can fill up your this thing particular electrons in a particular subshells. So this is the way how you can judge. आप चाहो तो इसको elaborate कर सकते हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px1 कभी का ऐसे दिया रहता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. फर्स्ट में है तो 2px आएगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू अ बिगर नंबर. लेट्स फोकस ऑन द पोटेशियम पार्ट. 19. सेम उसी से करना शुरू करो. 1s2 2s2 देन 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 10 18 19 में हुआ 4s1. तो आप ऐसे लिख दो. चाहो तो इफ़ यू वांट टू इलेबरेट यू कैन इलेबरेट योर पार्ट. देखो अप टू 20 कोई इशू नहीं होता है ना. 20 में एज सच कोई इशू नहीं है. जैसे इसी चीज़ को आप और इलेबरेट कर सकते हो. कौन कह रहा है कि आप इस यहाँ तक करो. आप चाहो तो इसको भी इलेबरेट कर सकते हो. जैसे पीछे का तो आपने देखा हुआ ये इलेबरेशन यहाँ तक 2p6 3s2 का. अब इसको देख लो कैसे हो जाएगा. 3px2 3py2 3pz2 and 4s1. So this way you can write down your electronic configuration. But the problem arises after 20. So there are elements which are transitional elements. They are the biggest problem. Exception 2 point देखो easy वाला is it's fine, you can do it in the same manner. This rule you can follow. लेकिन the question arises जो boards में भी आते हैं वो आते हैं आपके transitional elements पर. और सेकंड आता है एक्सेप्शनल. इजी तो बच्चा कर ही लेता है, उसमें कोई इशू ही नहीं है. ठीक है. एक्सेप्शनल एलिमेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में इन्हीं में से ही आना है आपका पेपर. राइट. आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल. स्कैंडियम SC Z is equals to 21. Now please make this point. Once before that let's focus on the calcium part. Calcium is 20. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 means calcium में this 4s is filled, right? And if you remember that your case of your diagram which I have shown you, that just see 4s is filled in calcium which I have shown you. Now it should goes to 3D electron. तो अपकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा स्कैंडियम का it should goes to 3D but it is not at all happening like that. ठीक है. मीन्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कैल्शियम में आप 4s तक आप कंप्लीट कर चुके हैं. यू हैव फिल्ड अप. बट नाउ जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ फाइन. दिस विल एंटर्ड इन 3D. ठीक है. दे विल एंटर्ड इन द 3 क्योंकि नेक्स्ट जो ऑर्बिटाल है वो 3D का ही है. बट द पॉइंट इज़ दैट द राइटिंग ऑफ फॉलो भी आपको हुंस रूल के हिसाब से करना है. बट द पॉइंट इज़ दैट है ना कि यू आर राइटिंग इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दिस. ठीक है. आप इसको फोकस करोगे तो आपका क्या होना चाहिए 4s2 पहले भरेगा फिर देन योर 3D1 शुड बी देयर. ये कंडीशन होनी चाहिए ना भाई. यहाँ तक तो आप 20 भर के आ रहे हैं. अब जो 21th इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू 3D. डेफिनेटली इट विल गो टू 3D. बट इन केस ऑफ दीज थिंग्स देर आर डिफरेंट केस. आई एम टेलिंग यू हाउ इट्स हैपनिंग. So let's focus on it. It should be like this. अब हमारे उस डायग्राम में तो 3D पहले आ रहा है दिस. बट वी आर नॉट राइटिंग इट. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिल ऑल द 3Ds. देन वी कैन कम टू अदर पार्ट. ये अब ऐसे दिखेगा. कैसे दिखेगा? द सेम पार्ट यू आर राइटिंग बट यू आर ओनली चेंजिंग दिस पार्ट. That is 3D should be filled first, then your 4s2 be there. मीन्स अब जो अपकमिंग नंबर होंगे तब तक चलता रहेगा ये सिलसिला जब आप एटॉमिक नंबर अप टू 30 तक यही कहानी चलेगी कि क्या होगा. डी भरेगा. 4s2 ऐसे ही दिखेगा आपको. रेयर ऑफ द रेयर केसेस जहाँ चेंजेस आपको आएंगे मैं फिर बताऊंगी. वो 2-3 हैं एग्जांपल्स. क्रोमियम इज़ देयर एंड योर कॉपर इज़ देयर. ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं. उनको अलग से स्टडी करेंगे हम. लेकिन वैसे अप टू 21 से लेके 30 तक वी विल फॉलो दिस मैनर. सपोज करो अब हम नेक्स्ट मेंबर ले लें टाइटेनियम. ठीक है. उसका एटॉमिक नंबर 22 होता है. सो व्हाट यू विल डू 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 देन 4s2 भर चुका है, मतलब कैल्शियम का भर चुका है, इसमें कहानी नहीं करनी है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, 3d2 हो जाएगा ये, है ना। फिर नेक्स्ट मेंबर आपका 23 रोल नंबर वाला जो भी होंगे वेनेडियम है, ठीक है। सो सेम मैनर इट विल फॉलो. I am not touching the exceptional here. I'll discuss them in the different manner, otherwise you will get confused, ठीक है। So I am not, after that chromium comes. chromium में सिलसिला फ़र्क है, will not focus here, ठीक है। I am not taking chromium here, otherwise you will be confused because I have to teach you in a very different manner. फिर मैग्नीज आता है, मैग्नीज हो जाएगा 25, तो सेम यहाँ ये चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीज़ का, ठीक है। फिर आपका आयरन है, Fe इज़ 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयरन में आपका, इट विल कम अराउंड 6, 3d6 हो जाएगा। तो आई थिंक नाउ यू कैन डू इट टिल 30, बट यू हैव टू कीप इट माइंड क्रोमियम और कॉपर को आप हटा दीजिएगा बिल्कुल, अभी यहाँ पे उनको मत टच करिएगा, अदरवाइज यू विल कन्फ्यूज ओवर है। तो क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप हटा लीजिएगा, विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट दिस थिंग इज सिनेरियो इज क्लियर टू यू। तो Mn का भी चलिए बना लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s2 20 हो गया, यहाँ 3d5 हो जाएगा। आयरन में क्या हो जाएगा ये 3d6 हो जाएगा। फिर 27 रोल नंबर किसका होगा, 27 इज़ कोबाल्ट, सो इट विल 30 ये 3d7 हो जाएगा। फिर 28 रोल नंबर किसका है, निकिल, है ना, देन इट विल कम तो दिस वे आई एम टॉकिंग, तो 3d8 हो जाएगा। कॉपर अगेन इट इज़ एक्सेप्शनल केस, प्लीज़ इग्नोर इट, डोंट see it here, we'll discuss later on. So this way you have to fill up your transition elements. Now let's focus on the other part also. Now let's focus on the half filled subshell and completely filled subshell, then only you'll understand about chromium and copper. Let's focus on it. देखो हाफ फिल्ड और completely filled का क्या, पहले हम हाफ फिल्ड्स को देखते हैं कि एक्चुअली हम हमेशा कहते हैं कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं या कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स हैं, ये इनके जो भी एटम्स होते हैं, जो एटम्स जो इस कंडीशन को शो करते हैं, दे आर हाईली स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे हैव, राइट। So let's focus on it, how this happens. Now we will see this and we will focus on the 2 points which we have to focus, that how this particular completely filled or half filled orbitals or subshells are extremely stable or extra stability they shows. There are 2 points, one is symmetrical distribution of electrons and other is exchange energy. Now let's focus on this. If you see the diagram, suppose I am taking this d orbital, क्योंकि सारा खेल होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में प्रॉब्लम, पी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कहीं पे भी, तो पी की तो गलती से आप बनाइएगा नहीं, आप सारा जो सिस्टम आपका रहेगा वो डी से शुरू होता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन्स डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। नाउ हाफ फील्ड इज़ द केस व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स, और कम्प्लीटली फील्ड क्या होता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड। Now this says they have the point is symmetrical distribution of electrons. If you compare these two things, they are quietly more stable, and the point is seen if they in this point is symmetrical distribution. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पाँचों एक ही डायरेक्शन पे, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर भी क्या है भाई, 5 अगर ऊपर की तरफ है तो 5 नीचे की तरफ है, एक क्लॉकवाइज में है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्या है सबके सब क्लॉकवाइज है, ओवर या 1 इज़ क्लॉकवाइज अदर इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या इक्वल हो रहा है ना, इक्वल चीज़ें चल रही हैं, सो दैट्स वाई दे आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर। एक कंडीशन तो आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी जो हमारा पॉइंट आता है एक्सचेंज एनर्जी का, अब एक्सचेंज एनर्जी का देखो पॉसिबिलिटी क्या होता है, इसको हम कई डायग्राम से लेके देखते हैं, डी पे ही लेके चलते हैं, जैसे डी में है, ठीक है। डी में अगर हम कंडीशन देखें, फोकस ऑन द एक्सचेंज ऑफ दिस थिंग, दे आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, एंड व्हेन दे आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, लेट्स सी हाउ मच दे कैन एक्सचेंज। जैसे सपोज दिस इलेक्ट्रॉन देखो आगे ही जंप करे, उल्टा नहीं लौटते हैं कि अपनी जगह छोड़ के पीछे की तरफ आ जाए, नहीं, ठीक है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द ह्यूम्स रूल। तो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू स्विच टू दिस पोजीशन और दिस कैन स्विच टू दिस पोजीशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर एक्सचेंजिंग 2 पोजीशन, और 2 एक्सचेंज कुछ भी कह लो। if you talk about this electron, this have the only 1 position, it can exchange this part only, so एक exchange और हो गया, ठीक है। अब ये आगे तो जाएगा नहीं,
तो टोटल एक्सचेंज कितना हुआ, 2 एक्सचेंज यहाँ हुए, क्योंकि इस वाले ने यहाँ स्विच ओवर कर सकता है, ये वाला जो है वो आपका ये आगे इधर स्विच ओवर कर सकता है। तो टोटल कितना हो गया आपका 3, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इस केस में कितने हुए, 3 हुए। अब यहाँ पे आ जाओ, लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैन स्विच टू दिस पार्ट और इट कैन स्विच टू दिस पार्ट और इस कैन स्विच टू दिस पार्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स कितना स्विच करेगा, 3 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज। ये एक इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करो तो ये एक और इलेक्ट्रॉन जो था वो कितना उसने 2 एक्सचेंज करे। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ये वाला सिर्फ इधर ही आ पाएगा। So, एक और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन था वो क्या है, 1 एक्सचेंज करेगा, है ना। ये तो कर ही नहीं पाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये आपस में एक्सचेंज का मतलब होता है एक पार्टनर जोड़ा चाहिए होगा ना, जिससे वो पैर चाहिए होगा जिससे वो एक्सचेंज कर सके। खाली जगह में किससे एक्सचेंज करेगा, यहाँ बैठ जाएगा, फिर यहाँ से किसको भेजेगा। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 3 + 2 + 1 इज़ हाउ मच, 6। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए आपके, 6। अब आप खुद बताइए मुझे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो ज़्यादा, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना, जो जितना ज़्यादा एक्सचेंज करता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हम इसको नहीं देख रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड की। वो तो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया। अब सपोज़ करो हाफ फिल्ड का सिनेरियो देखते हैं हम। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, यानी ये D5 की कंडीशन है। अब इसमें एक्सचेंज देखो कितना हो, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3 and 4। दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग 4 एक्सचेंज, ठीक है। अब एक बार और बना, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी डायग्राम्स है तो हमें काफ़ी बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, वो कहाँ जाएगा, ये वाला। इट विल स्विच ओवर टू दिस। हाउ मच और एक्सचेंज हुए, 3 एक्सचेंज। अब एक और पोजीशन बनाएं। Now we will talk about the third electron. It will go to this point and this point. Now कितने exchange हुए, 2 exchange. You are getting how many exchanges are there? Now let's come to this part. लास्ट वाला बेचारा तो ऐसे ही रह जाएगा, ये इधर, ये 1 exchange. Now see how many exchanges are there, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल D5 ने कितने एक्सचेंज कर डाले, टोटल आपके 10 एक्सचेंज हो गए, यानी 10 जगहों में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर सकते हैं टोटल एक्सचेंज, क्योंकि आप सब काउंटेबल हैं, 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल यू आर गेटिंग 10। तो 10 एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस। ये तो हाफ फील्ड में। अब सपोज़ करो अगर कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, है ना, तो यानी जो ये 10 कर रहे हैं, दूसरा वाला भी तो 10 तरीके से करेगा, दैट विल ऑल्सो करने। तो टोटल कितना एक्सचेंज हो जाएगा, कम्प्लीटली फील्ड में 20 एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ 10 एक्सचेंज है, वहाँ 10। तो जिसमें भी ज़्यादा एक्सचेंज होता है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या है आपका, हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड, इसीलिए कंपैरिजन टू दूसरों के में ज़्यादा स्टेबिलिटी इनको शो करी जाती है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द एक्सेप्शनल्स। हमने क्रोमियम का लिखा है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग को लेटेस्ट दिखता है वो ये है। दिस इज़ द केस ऑफ क्रोमियम, फाइन। बट दिस इज़ एक्चुअल में होना ये चाहिए था अगर हम अपने डायग्राम से फोकस करें, क्योंकि कैल्शियम तक हमारा 4s वॉज कम्प्लीटेड एंड दिस वॉज 3d4, है ना। अब पॉइंट इज़ दैट ये बहुत ही डिफरेंट केस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, 3d के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए क्रोमियम का, वो या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली देखो 3d जो 4 है ये बहुत नियर है कंपैरिजन टू हाफ फील्ड के। अगर 3d4 का कंडीशन देखो तो देखो 1 2 3 4, यहाँ ये वेकेंट है। अगर हम कोशिश कर लें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ कर दें तो हम क्रोमियम को स्टेबल नहीं बना देंगे। वही चीज़ हुई है यहाँ पे। हुआ क्या है कि जो 4s में था एक्चुअल में हमारा ये होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो गया है कि 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन इज़ बीन ट्रांसफ़र थ्रू 3d, जिसके वजह से ये देखो हाईली स्टेबल दिखेंगे और ये आपका हाफ फिल्ड सब शेल्स में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हाफ फिल्ड्स में समझो, अगर हम पी की कंडीशन देखें, पी में इफ़ यू सी दिस इज़ द केस, डी के केस में यू हैव दिस 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5। एफ़ के केस में हम देखते हैं 2 3 4 5 6 एंड 7, ये एफ है। हाफ फिल्ड होता है जब इसमें एक एक ऐसे भरा हो। दिस इज़ द केस ऑफ हाफ फिल्ड।
और कम्प्लीटली फिल्ड क्या हो जाएगा, यानी जो हमारी हाफ फिल्ड की कंडीशन थी, अगर P3 दिखे, D5 दिखे, F7 दिखे, ये हाफ फिल्ड की कंडीशन है। और कम्प्लीटली फिल्ड में P6 ये भरा हो पूरा, 10 F is 14, पूरा पूरा भरा हो, डबल डबल हो, तो ये हमारा कम्प्लीटली फिल्ड सिनेरियो होता है। नाउ द पॉइंट इज़ दैट we are not writing in this manner, we are writing, if you write down this I'll give you 0. This is the point. Now we should have a specific reason why we are doing these things, that one of the electron is coming from 4s, it is coming to 3d. So there are certain rules which you have to focus. Actually what happened, that if you see the electronic configuration, if you see this thing, this is neither half filled nor completely filled in chromium. So actually होता क्या है कि one of the electron from 4s it's been jumped to 3d. It is happening because of one word, that is your inter-electronic repulsion forces. Because of it, because of these electronic repulsion forces, one of the electron from 4s is being entered to the 3d subshell. So instead of 3d4, now you'll have 3d5. And if you see this condition, when it's entered in this manner, one of the electron, this is also half filled and this is also half filled. This is extra stability, this leads to an extra stability for the atom. Same part arises in the case of your copper also. Copper का भी अगर देख लें, actually copper is 29. If you see your electronic configuration, you should write down in this manner, है ना, ये फिल होता ही होता है, 4s2 इसको फिल करना है और 3d9 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। हमें लास्ट 2 पे फोकस करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन लगती है कि एक्चुअली या ना ये हाफ फील्ड में आ रहा है ना ये कम्प्लीटली फील्ड में। अगर इस बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए तो कम्प्लीटली फील्ड में आ जाएगा ना, तो वही चीज़ होती है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s2 इज़ एंटर टू योर 3d10 विच मेक दिस पर्टिकुलर, क्रोमियम में हाफ फिल्ड होगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d जो है, 3d की बात हो रही है, दैट विल बी कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। 3d शेल को, ये जो है आपका 3d है सेक्शन, वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। दिस इज़ अगेन द केस ऑफ द सेम सिनेरियो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस फोर्सेस की वजह से वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंटर टू 3d। दिस वर्ड यू हैव टू राइट डाउन। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में भी आता है, प्लस इट इज़ अ वेरी, दीज 2 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीजनिंग पार्ट ऑल्सो। वाई दिस हैपेंड दैट योर कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफरेंट, और शो करेंगे वो लोग, दिखाएंगे कि ये होना चाहिए, बट यू आर मेकिंग दिस थिंग बाय, देन यू विल से दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s enter to 3d due to inter electronic repulsion forces. This much you will write. This make 3d particular 3d subshell as a completely fit one. ठीक है, so this way you can have your point and you can give your answer, and this provides to extra stability for the particular atom, and whether it is a half filled or completely filled. So I think this much is clear to you all. Now you can make your own electronic configurations, you can have the stability. We have covered up all the things. If anything is remaining, then ask, you can ask, and there are different ways of writing electronic. Practice, the more you will practice, the more you will understand. So but this is the main part which you have to focus.